Yes, good morning all of you. So welcome to the last lecture of CA Intermediate Cost and Management Accounting, a journey which we started on day 1 in the lecture number 1 with R0. That journey we are going to complete today with more than 65 lectures which we completed in the class. So lot of time of fun and entertainment and lot of understanding. So quickly करते हैं इसे conclude ताकि फिर हम कर सके दूसरी बात। सबसे पहले आपका होमवर्क क्वेश्चन चेक करते हैं। Your homework questions for last lecture was question number 11 and question number 17. Question number 11, you have to ascertain the profit or loss as per financial accounting. Check all of you, is it having loss of 3,000 rupees? Loss as per financial accounting is 3,000 rupees. You have to find out the profit as per profit or loss as per cost accounting. That means you have to prepare that cost sheet. और जब आप वो cost sheet बनाते हो तो मिलेगा 20,000 profit. Check all of you. और दोनों में डिफरेंस एक है, मतलब रिकंसिलेशन आइटम स्टेटमेंट सिर्फ 3 लाइंस का है. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग 20,000, unabsorbed under absorption of overheads 23,000, and you get the loss as per financial accounting as 3,000. That's the correct answer. Check all of you. Your next homework question was question number 17, which was a customary question, traditional question, जहां पे आपको तीनों चीजें फिर से कैलकुलेट करना था या नहीं? आपको सिर्फ और सिर्फ बनाना था रिकंसिलिएशन. आपको आंसर वहां दिए ही हैं, दोनों आंसर्स आपके पास हैं. सो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप लेते हैं लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग विच इज 35,400, यू विल अराइव एट द एंडिंग पॉइंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज 67,800. एंड वाइस वर्सा इफ यू स्टार्ट विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग. हैव यू गॉट दैट आंसर? कितनी देर में हुआ ये क्वेश्चन? 5-7 मिनट्स में हो जाना चाहिए आइडियली. करेक्ट. सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एनालाइज किया था नवंबर 2018 का पेपर, और मैं पूरा बिलीव करता हूं कि वो पेपर देखने के बाद आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा, इजंट इट? आज हम क्विकली पहले कंप्लीट करते हैं बैलेंस क्वेश्चंस. लास्ट लेक्चर है, मैं कोई भी बुरी यादें मतलब होमवर्क नहीं छोड़ना चाहता हूं. जो भी है हम फटाफट उसे क्लास में करेंगे, और उसके बाद आज हम एनालाइज करेंगे सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस का पहला पेपर, दैट इज मे 2018 एग्जामिनेशन पेपर. Are you understanding all of you? Shall we start? Okay. So हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस की लिस्ट है बहुत ही छोटी, और हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से. कम टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. Let's quickly read it, understand it, and then we proceed. MF, how's your ground floor today? Full. क्या बन के आए हो आज आप? No. We got a bottle for you. I have a suggestion for you. You can be Devdas today. And it is absolutely going with the situation. White we can borrow from someone, so that will go perfectly with your situation. You unnecessary don't try to access accounts of others. You're very bad. As and when she matches height, she automatically jumps into the pool. You tell this Arshia, I tell you, she will just give you 1.5 किलो का हाथ, और इंसान उठ नहीं उठ लीजिए. हाँ, आपको वैसे आज जया बच्चन बनना चाहिए था. Okay, the financial records of Modern Manufacturing Limited reveals the following for the year ending 31st March. 31st होना चाहिए, 30 हो गया एक दिन पहले. वेरी गुड. 2018 सेल्स दिया है मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिनिश्ड गुड्स 1230 यूनिट्स. ये है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक. WIP हमें दिया गया है Goodwill written off, interest on capital ये हमें दिया. In the costing records, factory overhead is charged at 100% of wages.
Admin overheads 10% of factory cost and selling and distribution overheads at 10% per unit sold. Prepare a statement reconciling the profit as per cost with the profits as per financial records. They have asked the question very tactfully, very diplomatically. They haven't told you to prepare the financial P&L and the costing P&L, but my dear friends, अगर reconciliation बनाना है तो दोनों तो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो profits दिए नहीं है. See, question number 17 was a different story. वहां पे आपको दोनों profits दिए थे और फिर आपको reconcile करना था. यहां पे आपको दोनों profits दिए ही नहीं है, तो क्विकली करते हैं कैलकुलेट. कम टू योर रजिस्टर, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9/AAA/7.11 P&L अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. हो गए फॉर्मेट्स? हाँ क्या? मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, कुछ और नहीं. प्रभात ऐसा क्या बन के आ रहा है पता नहीं, आज आया नहीं प्रभात. क्रिकेटर जगू आज आपको, हाँ वाह, सरमन क्या बन के आया देखो आज. सरमन कोई तो मूवी में किसी तो कैरेक्टर का नाम था. हाँ बिल्कुल सही, फैंटास्टिक. मैं तब से वो सोच रहा किसका नाम था. मोहनजोदाड़ो में ऋतिक का कैरेक्टर का नाम था सरमन. अपने नाम के साथ कितना देखो. प्रभात आ गया, देखो प्रभात क्या बन के आया. इवनिंग कुछ भी नहीं. क्या मेरी उड़ा रहे हो? देखो जो आप बोल रहे थे वही बन गया प्रभात. दीपांशी. चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं. पहले हमारा कर्म करते हैं, फिर बाद में टाइम पास. सेल्स 25 लाख रुपीस. कम टू क्रेडिट साइड. $25 lakh. Material 10 lakh, wages 5 lakh. फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है, सो क्रेडिट में आएगा. वैल्यूएशन इज 1,50,000. देन यू हैव बीन गिवन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 70,000. Goodwill written off. It is an expenditure. Interest on capital, what exactly it is? Interest on capital क्या होगा? Expense होगा. Very good. हाँ, हम यहाँ ट्रेडिंग P&L अप्रोप्रिएशन एक साथ बना रहे हैं. चेक कीजिए.
आया सभी का? करेक्ट, डन। अब इसके बाद बनाइए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जैसा हम हमेशा बनाते हैं। करेक्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग।
ओके, सो मटेरियल वेजेस आपको अलग से कुछ दिए नहीं है, सो जो भी दिए हैं एज इट इज हम यूज करेंगे. मटेरियल 10 लाख, वेजेस 5 लाख. यू गेट प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कहा, इट्स चार्ज एट 100% ऑफ वेजेस. सो वेजेस कितने हैं? 5 लाख. सो 5 लाख वेजेस होने के वजह से दिस फैक्ट्री कॉस्ट विल बी 20 लाख. ओपनिंग WIP नहीं है बट क्लोजिंग WIP है. हाउ मच इज द क्लोजिंग WIP? चेक करो, 70,000. यू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. एडमिन ओवरहेड्स के बारे में कहा है, एडमिन ओवरहेड्स आर 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. सो 19,30,000 इज माई फैक्ट्री कॉस्ट. इसका 10% एडमिन ओवरहेड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो गया. क्यों भाई, सही है ना? क्यों? फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? अभी तक we have done so many questions, sir. Factory cost means exactly what? फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. See, that is just a subheading we are writing there, factory cost. But genuinely factory cost means this C, because when you add WIP then only you get this factory cost. Correct? चलो, opening FG नहीं है, closing FG is always valued at cost of production. लेकिन उसके लिए पहले हमें देखना होगा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. आइए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है, क्वांटिटी सोल्ड इज 20,000 और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 1230. Can I say total production is 21230? Do you agree with me? Okay, जवाब नहीं आया पर मैंने yes presume किया है. Divided by 21230 multiplied by what is the closing stock quantity? 1230. Very good. कितना अच्छा फिगर आया है. So हमें मिलेगा COGS, cost of goods sold. एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो क्वेश्चन में दिया है ₹10 पर यूनिट सोल्ड. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आर हाउ मच? 20,000. करेक्ट? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आर 20,000. सो दिस बिकम्स 2 लाख. सो यू गेट द टोटल कॉस्ट और द कॉस्ट ऑफ सेल्स एज 22 लाख. सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 25 लाख. सो प्रॉफिट विल बी बैलेंसिंग फिगर एज 3 lakh. Where do we even came today? आया? चलें आगे. सो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना आया था? 1,10,000. कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट आया है 3 लाख. क्विकली करते हैं इसे रिकंसाइल. करेक्ट? सो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग 3 लाख. रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. Shall we start reconciliation? आप आगे बढ़ना चाहे नो प्रॉब्लम, ना बढ़ना चाहे तो प्रॉब्लम. अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे मटेरियल और वेजेस कॉस्ट सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. फैक्ट्री ओवरहेड्स एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग इज 5 लाख, एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज 4,50,000. कहना से ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, कॉस्ट ज्यादा हुई है, मतलब कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम दिख रहा है. तो अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स.
Opening WIP, closing WIP values, no problem. Admin overheads as per cost accounting is 193. Admin overheads is 260. Can I say under absorption? So कितना difference है? 193 and 2,60,000, 67,000 क्या होगा? Add होगा. Sorry, less होगा. I'm sorry, less होगा. Under absorption of admin overheads. क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में डिफरेंस है. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज 150 और हमारा वैल्यूएशन कितना आ रहा है? 1,23,000. हमारे यहाँ वैल्यू कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा. बाय हाउ मच? 27,000. अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. $27,000. Selling and distribution overheads as per cost accounting is 2 lakh, as per financial accounting is 1,80,000. Can I say over absorption हुआ है? कितना हुआ है over absorption? 20,000. तो हम ऐड कितना करेंगे? 20,000. I think cost sheet यहाँ complete होती है. Now we have to consider those things which are there in P&L but not there in cost sheet. So what are those items? Goodwill written off and interest on capital. These are two expenses which are not provided. अगर ये provide करेंगे तो profit कम होगा. So 2 lakh और 20,000 हमें करना है माइनस. चेक कीजिए. It's getting tight. Clear? Easy है? No problem. चलें आगे? Okay. So this was one of the question what we were yet to do, which we have done. Now don't forget to give cross referencing and we'll do indexing at the end of the topic. The next question what we are yet to do is number 16. Come to question number 16. क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं, क्या करना है समझते हैं. ABC Private Limited has furnished its P&L for the year ending 31st March 2019 and also given a statement showing reconciliation between the profit as per financial records and cost records. क्या दो चीजें दी हमें फाइनेंशियल P&L दिया है और हमें रिकंसिलिएशन दिया है. लिहाजा है हमें जाहिर है हमें क्या बनाना होगा? कॉस्ट रिकॉर्डिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से कुछ चीजें बनानी होगी. सो ये P&L आपको दिया गया है जिसके हिसाब से प्रॉफिट दिख रहा है 1,42,000 और नीचे दिया है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स 1,42,000 and you arrived at the profit as per cost record which is 1,50,500. You are asked to specifically prepare 5 ledger accounts. What are those 5? Cost sheet नहीं बनाना है आपको. क्या क्या बनाना है? Material control account which is also known as stores ledger control account. Number 2, WIP control account. Number 3, FG control account. Number 4, cost of sales account. And number 5, costing P&L account. कैसे करना चाहिए? What do you think? How to proceed ahead? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर हमें ये 5 लेजर अकाउंट्स बनाने हैं. लेट अस सी, लेट अस प्रिपेयर. कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 16/AAA/7.15. Question 16/AAA/7.15. Listen to me carefully. If you are starting from a new page, prepare these 5 accounts in such a way that on the first page
you are able to prepare 3 accounts for 1/3, 1/3, 1/3 page. For the equal size, prepare 2 more accounts on the next page. Correct? So approximately it will be 6 lines each account. Prepare it. What do you think? How to proceed ahead? एक एग्जाम्पल देता हूं. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड आ रहा है 1,50,500. आपके सारे अकाउंट्स बन गए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. करेक्ट? कॉस्टिंग का प्रॉफिट किस अकाउंट से पता चलता है? कॉस्टिंग P&L अकाउंट. कम टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, डेबिट साइड, सेकेंड लास्ट लाइन. Costing P&L account, debit side, second last line, to costing profit. To costing profit. Can I say this figure is 1,50,500? Check karo all of you. Have you understood all of you? Can I say this figure is 1,50,500? Please check karo, do you agree with me or not? बस ऐसा ही है ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें दिया गया है और माय डियर फ्रेंड्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा हमें दिया गया है उसको बेस कंसिडर करके हमें ये सारे अकाउंट्स कंप्लीट करना है 1 by 1. करेक्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं. एक फिगर हमने यूज कर ली है, दैट इज द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड. सेल्स आपको दिख रहा है 17,80,000. हमने देखा है सेल्स में कभी कोई चेंज होता है? नहीं होता है. सेल्स किस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है? कॉस्टिंग P&L में. गो टू कॉस्टिंग P&L क्रेडिट साइड बाय सेल्स 17,80,000. बाय सेल्स 17,80,000. एब्सोल्युटली करेक्ट. दोस्तों क्रेडिट में दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल और WIP का. रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में. और WIP का WIP कंट्रोल अकाउंट में रुकते हैं. लेकिन डिविडेंड ऑन शेयर्स, विल इट गेट रिफ्लेक्टेड एनीवेयर इन द कॉस्ट अकाउंटिंग? आंसर इज नो, इट वोंट गेट रिफ्लेक्टेड एनीवेयर इन द कॉस्ट अकाउंटिंग. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल समझना अच्छे से.
मैं कौन से फिगर की बात कर रहा हूं? ये फिगर की बात कर रहा हूं. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज पर कॉस्ट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कमिंग हाउ मच? 99,000. लुक एट दी रिकंसिलेशन, कहीं कोई अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन है क्या? रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक को लेके कुछ दिख रहा है क्या? कैन यू सी ओवर हियर? 1,500. दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ऐड होगा या तो लेस होगा. अब सोचो क्या होगा. रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को देखो और सोचो क्या होगा. यहां स्टार्टिंग पॉइंट दिया है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, समझना. और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के प्रॉफिट में ऐड किया है. इसका मतलब क्या हुआ होगा? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में उसे ऐड किया है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, इसीलिए ऐड किया है. फाइनेंशियल प्रॉफिट कम क्यों दिख रहा होगा? क्योंकि स्टॉक कम दिख रहा होगा, मतलब कॉस्टिंग के हिसाब से स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी. कितनी ज्यादा होगी? 1,500 से. सो 99,000 प्लस 1,500 बिकम्स 1,05,000. कम टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड लास्ट लाइन. बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन. नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट में आके लिखिए 99,000 प्लस 1,500, it is coming to 1,05,000. आया समझ में ये आपको अच्छे से? क्लियर? अब आते हैं WIP के क्लोजिंग स्टॉक में. चेक करो WIP के क्लोजिंग स्टॉक की क्या पोजीशन है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से वैल्यू है 58,000 और नीचे अगर आप देखोगे तो वो लेस हुआ है 3,500. सो कैन आई से 58,000 minus 3,500, that will become 54,500. WIP control account credit side, second last line, by balance carried down. WIP control account, second last line, credit side, by balance carried down. Write down into bracket, वहां पे लिखिए. क्या लिखेंगे आप? 58,000 minus 3,500. 58,000 minus 3,500. Have you got answer? 54,500 लिखा सभी ने. अब फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, यहां पे कितना दिया है? 80,000. ओके, नीचे रिकंसिलेशन में चेक कीजिए क्या हो रहा है. फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक देखो कहां दिख रहा है. कैन यू सी हियर? मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वैल्यूएशन कम हुआ है, कॉस्टिंग में वैल्यूएशन ज्यादा हुआ है, मतलब कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हमने ऐड किया है. तो 80,000 प्लस 1,000 81,000. कौन सा अकाउंट? FG कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड. FG कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड लास्ट लाइन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस carried down 81,000. आ रहा है समझ में सभी को? करेक्ट. चलें आगे. डिविडेंड ऑन शेयर्स आएगा, क्रेडिट में दिया है जो नहीं आएगा. अभी डन ऑन द क्रेडिट साइड. क्लियर? नो प्रॉब्लम. लेट्स कम ऑन द डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक दिया है. अब एक चीज समझ आइए देखने से पहले, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन एज 95,500 और नीचे देखिए कुछ एडजस्टमेंट है क्या? लेस हुआ है 2,500. क्या मतलब होगा इसका? क्या मतलब होगा इसका? फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग स्टॉक है 95,500, उसके बाद प्रॉफिट आ रहा है 1,42,000. ये इन्होंने लेस किया. क्यों लेस किया होगा? क्यों लेस किया होगा? मतलब क्या होता है तो लेस होता है? कैन आई से
कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू ज्यादा होगी, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? सोचो सोचो अच्छे से। आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1,42,000, उसके अंदर रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कम किया है 2,500 से। ऐसा क्यों किया है? मतलब ये 1,42,000 प्रॉफिट तब आया जब मेरे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू है 95,500। ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तब है जब है 95,500। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। समझो समझो। 95,500 है एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डू यू एग्री विद मी? हमें देखना है कि एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो दो ही पॉसिबिलिटी है गाइस, या तो प्लस होगा, प्लस होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी 98,000, और या तो माइनस होगा, माइनस होगी तो ये वैल्यू कितनी होगी 93,000। समझ में आया? अब सोचो क्या होगा। अगर 98,000 होगा तो प्लस या माइनस होगा, और 93 होगा तो प्लस या माइनस होगा। यू विल गेट द आंसर। अप्लाई योर ब्रेन, पहला ही ट्रांजैक्शन है इसीलिए। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से हमारा प्रॉफिट है 1,42,000 जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 95,500। ठीक है। अगर कॉस्टिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होती है 98,000, मतलब सर वहां ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। वहां अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो वहां का प्रॉफिट कम होगा, तो मैं लेस करूंगा। समझ में आ रहा है? तो मैं लेस। और क्या मैंने यहां लेस किया है? यस। मतलब वहां ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी रही होगी 98,000 रही होगी। ये है ओपनिंग स्टॉक किस चीज का? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का अकाउंट कौन सा है? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेबिट साइड, पहली लाइन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 98,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 98,000। समझ में आया? टाइम लगेगा चलेगा, बट लॉजिकली समझना है चीज को। WIP का ओपनिंग स्टॉक चेक करना, समझना अच्छे से। WIP का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 45,000। ठीक है। अब नीचे देखो क्या है एडजस्टमेंट, ऐड किया है 2,000। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से WIP का स्टॉक है 45,000। अब ये 2,000 में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये 47 होगा या फिर ये 43 होगा। डू यू एग्री विद मी? WIP का ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। मैं अज्यूम करता हूं सपोज कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से ओपनिंग WIP 47,000, तो क्या होगा समझना। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया है तब जब WIP का ओपनिंग स्टॉक है 45। अगर वहां है 47 तो कहने से वहां ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। अगर वहां ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो वहां का प्रॉफिट कम होना चाहिए। अगर मैं 47 लेता हूं तो मुझे लेस करना चाहिए। क्या मैंने लेस किया है? नहीं, मैंने ऐड किया है। और ऐड क्यों किया है? क्योंकि वहां ओपनिंग स्टॉक है 43,000। ओपनिंग स्टॉक डिक्रीजेस, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस, इसलिए मैंने ऐड किया है। सो ओपनिंग WIP इज हाउ मच 43,000। कम टू WIP कंट्रोल अकाउंट, डेबिट साइड, फर्स्ट लाइन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,000। तीसरा क्रिटिकल, FG OS इज 78,000। नीचे चेक करो क्या दिया है 3,000 ऐड हुआ है। मतलब क्या करेंगे हम यहां 78,000 माइनस 3,000। FG कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट विल बी हाउ मच 75,000।
हैव यू गॉट दिस वैल्यू ऑल ऑफ यू? करेक्ट। अब देखो परचेजेस मतलब मटेरियल, परचेजेस मतलब मटेरियल। चेक करो नीचे मटेरियल से रिलेटिंग कुछ दिया है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। एक्चुअली जो जरूरत नहीं है उसको वैसे ही हटा देते हैं। इसकी कोई जरूरत है? इसका कॉस्टिंग में कुछ होगा? लीगल चार्जेस, इंटरेस्ट, गुडविल, कॉस्टिंग में कुछ होगा? नहीं होगा। मतलब बाकी तो जो है वो एज इट इज हमें लिखना है। चलो लिखते हैं। कम टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू GLA 6,42,000। ये GLA है या ये कंजम्पशन है या ये क्या है? कैन यू टेल मी? मतलब ये जो है 6,42,000 दिया हुआ, इज इट मटेरियल परचेज्ड और इज इट मटेरियल कंज्यूम्ड? मुझे नहीं पता। इज इट मटेरियल परचेज्ड और इज इट मटेरियल कंज्यूम्ड? मटेरियल परचेज। सो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? डायरेक्ट वेजेस ड्यू पेड वॉट एवर इट इज। करेक्ट। कौन सा अकाउंट है हमारे पास इससे रिलेटिंग है क्या? वेजेस कंट्रोल अकाउंट नहीं है। पर डायरेक्ट वेजेस कहां जाता है? WIP में। कम टू WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 2,22,000, 2,22,000। करेक्ट। चले आगे। उसके बाद दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स। डू यू हैव दिस अकाउंट विद यू? नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कहां ट्रांसफर होता है? WIP। तो वेजेस के नीचे ही लिखिए। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट रिटर्न। एडमिन एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में जाएगा? एडमिन एक्सपेंसेस किस में जाएगा? FG अकाउंट डेबिट साइड टू एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। टू एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। करेक्ट। उसके बाद क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस कौन सा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट साइड टू सेलिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट। गुडविल आएगा? नहीं। इंटरेस्ट आएगा? नहीं। लीगल चार्जेस आएगा? नहीं। कैसे किया जाए अब ये क्वेश्चन को कंप्लीट? सबसे पहले हम क्लोज करेंगे WIP कंट्रोल अकाउंट। WIP कंट्रोल अकाउंट में ओपनिंग है, क्लोजिंग है, मटेरियल परचेज्ड है, बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा? कंजम्पशन। मुझे यही अभी भी यही एक मेरा डाउट है आप लोगों से कि ये 6,42,000 कंजम्पशन है या परचेजेस है? कंजम्पशन हमने परचेजेस लिया, लेके देखो आंसर आ रहा है या नहीं। कंजम्पशन आया आप सभी का? करेक्ट। कितना आया कंजम्पशन? कंजम्पशन इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? FG कंट्रोल अकाउंट। नो, WIP। कम टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड। राइट डाउन बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। जस्ट राइट फिगर विथ पेंसिल। हिडन रूल अप्लाई होगा। जस्ट राइट दिस फिगर विथ पेंसिल। कितनी आई है फिगर? 4,55,000। इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट कहां होगा? WIP कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में। हेडिंग आप पेन से लिखो, फिगर्स पेंसिल से लिखो। हैव यू अंडरस्टूड? एग्जाम में ये डाउट आएगा ना सामने कि ये जो परचेजेस दिख रहा है, ये परचेजेस क्या है? मतलब इज इट गुड्स परचेज्ड और इज इट गुड्स कंज्यूम्ड? करेक्ट। 455 आपने निकाला है कंजम्पशन। WIP के डेबिट में आएगा टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर से ये फिगर लिखो 4,55,000 यूजिंग पेंसिल। अब WIP के डेबिट में देखो क्या क्या है दोस्तों। डू यू हैव ओपनिंग WIP?
यस. डू यू हैव मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऑन द डेबिट साइड? यस. क्रेडिट में दो ही चीजें होती है WIP के, याद है क्या? दो चीजें, एक जो गुड्स बने जो बन गए वो कहां जाएंगे? बाय FG अकाउंट, और जो नहीं बने वो क्लोजिंग दिखेगा. क्लोजिंग ऑलरेडी दिख रहा है. कैलकुलेट करो बाय FG का बैलेंस कितना आ रहा है. बाय FG अकाउंट हाउ मच इज द बैलेंस कमिंग? कितना आ रहा है? 9,11,000. Have you got that balance, all of you? वेदांत आया बैलेंस 9,11,000. What are they saying? I'm not getting. तो वही तो लिया ना हमने. कितना है आप लोग बता. Come on यार, don't make that stupid error यार. Please calculate properly and tell me how much is that figure. You can't do simple calculation यार. 2 figures on debit minus 1 on credit side. Are you sleeping all of you? Why you're sitting like dumb then? Everyone has their own calculators. Everyone know what to calculate, how to calculate. I'm telling everything and still you're sitting dumbly. How much is that figure? 6,39,500. Check all of you. Don't be puppets in the classroom. What are you asking? Have you got 639,500? मैं सिंपल कह रहा हूं, एक जगह आके क्वेश्चन अटक चुका है. वो क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे. वो क्वेश्चन ये है कि ये जो फिगर है, ये फिगर क्या है? इज इट मटीरियल परचेस्ड और इज इट मटीरियल कंज्यूम? अगर ये मटीरियल परचेज है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में आएगा, जैसा अभी हमने लिखा है. अगर ये मटेरियल कंज्यूम्ड है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय WIP में. अभी हमने क्या अज्यूम किया है कि ये मटेरियल परचेज है, तो डेबिट में है ये फिगर 6,42,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. हाउ मच यू गॉट मटेरियल कंज्यूम? 6,39,500. मटेरियल कंज्यूम होता है तो क्या एंट्री होती है? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. WIP के डेबिट में आप आ गए. WI के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है. ये मटेरियल का फिगर आ गया. लेबर है, ओवरहेड्स है. WIP अकाउंट से दो ही पॉसिबिलिटी होती है. क्या दो पॉसिबिलिटी होती है? या तो गुड्स बनेगा या तो गुड्स नहीं बनेगा. जो नहीं बनेगा उसे कहते हैं क्लोजिंग WIP. वो ऑलरेडी आपको पता है. मतलब जो बन गया है वो जाएगा कहां? बाय FG कंट्रोल अकाउंट. व्हाट इज दैट फिगर? 10,95,000 बाय FG कंट्रोल अकाउंट. अगेन आई एम सेइंग डोंट सिट लाइक puppets. You all have calculators with you. Please do calculation. 10,95,000 एंट्री क्या होगी? FG कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट. कम टू FG कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू WIP कंट्रोल अकाउंट. Write figure with pencil, heading with pen. How much is the debit? 10,95,000. Have you got that figure? अब FG कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में तीन चीजें दिख रही होगी, चेक कीजिएगा. एक ओपनिंग बैलेंस ऑफ FG, दूसरा एडमिन ओवरहेड्स और तीसरा वो गुड्स जो अभी बने हैं और WIP से आए हैं, जो अभी आपने लिखा है 10 लाख समथिंग. अब यहां से जो गुड्स बनते हैं उसके फेट में, डेस्टिनी में क्या है? दो ही चीजें हैं. या तो वो बिकेंगे या तो वो नहीं बिकेंगे. अगर वो नहीं बिकेंगे तो वो दिखेगा एज अ क्लोजिंग स्टॉक. वो ऑलरेडी है आपके पास फिगर बाय बैलेंस कैरी डाउन. जो बिक गए वो जाएंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. What is this figure? Calculate with pencil. How much? 12,87,500. अब ये फिगर कहां डेबिट होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के डेबिट में. टू
फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट 12,87,500 और कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में क्या पड़ा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और वो अमाउंट कितना है? 3,42,000 इसमें ऐड हो जाएगा और ये टोटल जाता है बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट, बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट. Is it coming 16,29,500? Come to costing P&L account debit side और वहां आएगा to cost of sales. 16 lakh how much? और अब वहां सेल ऑलरेडी है, प्रॉफिट भी ऑलरेडी है. पहले चेक करो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. बस हमने सोचा था वो सही है. ये मटेरियल परचेज है, मटेरियल कंज्यूम नहीं है. क्लास में जब करते हैं आपका एब्सेंटिज्म यही समझ में आ गया. व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर नॉट कैलकुलेटिंग देन? What is actually means what? When we are doing something in class together, खुद होके आप कर नहीं रहे हो, जो मैं बता रहा हूं वो कर नहीं रहे हो, then what exactly are you doing? Only physical presence will not suffice. Please understand. Mental presence is required. You have to calculate each figure on your calculator. You have to vouch everything what we are doing. You have to understand everything what we are writing. Then only you complete your studies together with class. Otherwise, you are just writing. There is no point to it. चले आगे. क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बहुत छोटे से कंसेप्ट पे बेस्ड है. कंसेप्ट कुछ नहीं है, जो हम अभी एक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट बनाते हैं उसका स्टेटमेंट ना बना के हमें बनाना है एक अकाउंट, दैट्स ऑल. और उससे कहते हैं मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट. मेमोरेंडम ये वर्ड हम पहले भी देख चुके हैं. इन सीपीटी फाउंडेशन एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसका नाम था जॉइंट वेंचर अकाउंट. और जॉइंट वेंचर अकाउंट में एक मेथड हुआ करती थी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड. ये वर्ड हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा है जहां हम बनाते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट. मेमोरेंडम मींस व्हाट? मेमोरेंडम मींस टेम्परेरी, जस्ट फॉर सम टाइम. मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट. हम अभी क्या करते हैं? वी रिकंसिल द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग और प्लस माइनस असाइन करके हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट कैसा होता है? पर्टिकुलर्स अमाउंट. अकाउंट मतलब कैसा होता है? इट्स अ टी फॉर्मेट. यही वर्ड्स हमने पहली बार लाइफ में कब देखे थे? जब 11th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक टॉपिक हमने पढ़ा था और उस टॉपिक का नाम था ट्रायल बैलेंस. डू यू रिमेंबर? ट्रायल बैलेंस दो टाइप से बनाई जा सकती है. क्या है वो दो टाइप्स? आपने नहीं पढ़ा होगा. कैन यू टेल मी व्हाट आर दोस टू टाइप्स? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है ना टी फॉर्मेट, जहां पे ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड. दिस इज नोन एज अ लेजर फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. करेक्ट. और दूसरा एक फॉर्मेट बनता है ट्रायल बैलेंस का जहां पे आप एंड में दो कॉलम्स बनाते हो. एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट. दिस इज नोन एज विच फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस? स्टेटमेंट फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. समझ में आया? अभी तक हम जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे वो किस फॉर्मेट में बना रहे थे? स्टेटमेंट फॉर्मेट. अब ये दो क्वेश्चंस में हमें कैसे बनाना है? इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट. प्लीज अंडरस्टैंड, बेसिक्स चेंज नहीं होंगे, बेसिक्स वही होंगे. तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, हम हमारे हिसाब से वहीं प्लस माइनस करते हैं, चेक करते हैं आंसर आ रहा है या नहीं, और फिर तो हमें सिर्फ कॉपी करना है ना स्टेटमेंट फॉर्मेट. करें स्टार्ट? चलो देखते हैं.
फिर से कह रहा हूं, बी अटेंटिव इन क्लास, बी फोकस्ड इन द क्लास। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज द नेट लॉस ऑफ 3,47,000 एज पर देयर कॉस्ट अकाउंट। हम हमेशा, हमारी आदत है वी स्टार्ट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, आदत बदली भी जा सकती है। सो 3,47,000 मैं यहां लिखता हूं। द फाइनेंशियल अकाउंट्स हाउएवर डिस्क्लोज द नेट लॉस ऑफ 5,10,000। क्या ये फिगर मैं सबसे नीचे लिखूं इस तरीके से? मतलब मुझे यही कि यही पता चल जाएगा ना कि मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं। The following information was revealed as a day of scrutiny of the figures of both the sets of accounts. अब आपको एडजस्टमेंट्स दे दिए गए हैं, आपको इन एडजस्टमेंट्स को क्या करना है? प्लस माइनस करना है। कैसे करेंगे समझिएगा एक एक करके। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब मतलब क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग में कम दिख रहे हैं, दोनों में लॉस है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट अकाउंटिंग में कम दिख रहे हैं, कहने से वो कम दिख रहे हैं, एक्सपेंस कम दिख रहे हैं, तो लॉस भी कम दिख रहा है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस भी ज्यादा है, हमें यहां क्या करना होगा? इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके लॉस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लॉस है ना, और लॉस बढ़ाना है तो क्या करना होगा? लेस करना होगा, ना कि ऐड करना होगा। एडमिन ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब। अब आप एक सेकंड में आंसर दोगे ऐड। हाँ मुझे पता है कैसे दिया आपने आंसर प्रभात। ये देखो मैं बता रहा हूं प्रभात ने कैसे दिया। यहां देखा अंडर तो लेस, यहां देखा ओवर तो ऐड। वेरी गुड। ये रिलेशन हर जगह काम नहीं करेगा। चलो एक बार लॉजिकली देखते हैं। एडमिन ओवरहेड्स ओवर एब्सॉर्ब। कॉस्ट अकाउंटिंग में एडमिन ओवरहेड्स ज्यादा दिख रहे हैं। एडमिन ओवरहेड ज्यादा दिख रहे हैं इसलिए लॉस भी ज्यादा दिख रहा है, जबकि एक्चुअल एडमिन ओवरहेड्स कम है तो एक्चुअल लॉस कम होना चाहिए। तो लॉस को अगर कम करना है तो हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। डेप्रीसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डेप्रीसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों अलग अलग हमें दिया गया है। क्या करेंगे हम? डिफरेंस निकालेंगे। ओके कैन आई से कॉस्ट अकाउंटिंग में डेप्रीसिएशन कम दिख रहा है बाय 50,000, अंडर एब्जॉर्प्शन। डेप्रीसिएशन कम दिख रहा है तो लॉस भी कम दिख रहा है। अब हमें लॉस को बढ़ाना होगा, मतलब ये डेप्रीसिएशन को माइनस करना होगा। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट। ये एक इनकम है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं ली इसलिए इतना ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। लेता था नहीं लिया तो इतना ज्यादा लॉस आ रहा है। अगर ये इनकम लेता था तो लॉस कम आता था। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, कॉस्टिंग में प्रोवाइड किया हमने? नहीं। फाइनेंशियल पीएनएल में प्रोवाइड हुआ, हमने प्रोवाइड नहीं किया इसलिए लॉस कम है। प्रोवाइड करते थे तो ज्यादा होता था तो माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी क्या होगा? माइनस होगा, एक्सपेंस है। ट्रांसफर फीस, अब ये देखो ट्रांसफर फीस कैन बी इनकम ऑल्सो एक्सपेंस ऑल्सो। यहां ब्रैकेट में कुछ दिया है क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स, मतलब इनकम है। ये इनकम हमने कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं की इसलिए लॉस ज्यादा आ रहा है। कंसिडर करते थे तो लॉस कम होता था तो हम ऐड करेंगे। स्टोर्स एडजस्टमेंट फिर से क्रेडिट है, ऐड करेंगे। और डिविडेंड रिसीव्ड ऐड करेंगे। जरा चेक करो एक बार मैच हो रहा है या नहीं। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। इज इट मैचिंग? मतलब देखा कितना ज्यादा कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है हमें। सो कितनी फिगर्स लेस हो रही है? 1 2 3 4 फिगर्स आर गेटिंग लेस। समझ में आया? क्लियर? नाउ लिसन टू मी केयरफुली।
हाउ डू यू प्रिपेयर दिस मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट? समझ लेना, एग्जैक्ट है सेम अगला क्वेश्चन, वो आपको ही करना है अभी, इसलिए अभी अच्छे से समझ लो, डोंट राइट। नाउ इन दिस अकाउंट इट इज एग्जैक्टली लाइक अ लेजर अकाउंट, ठीक है। इस लेजर अकाउंट को हम बनाते कैसे हैं? इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में कहीं पे भी इस पे एक वर्ड भी नहीं दिया है, सिर्फ एक सेंटेंस दिया, बट ये बनाना कैसे उस पे एक वर्ड भी नहीं दिया है। अब आपको ये समझना है, सबसे पहले क्या करना है, टेक स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। यू जस्ट हेल्प मी आउट विद द फिगर्स। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? टू नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कितना आ रहा है वो? 3,47,000। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या कहा था, सिर्फ याद रखना है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं। स्टेप नंबर 1 क्या कहा था मैंने? टेक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द डेबिट साइड। जो भी सब्सट्रैक्ट वाले आइटम्स है ना, कितने हैं सब्सट्रैक्ट वाले आइटम्स? 4। उन सभी को करना है डेबिट। क्या क्या है? जस्ट टेल मी अमाउंट्स ऑफ सब्सट्रैक्ट। 40,000, 50,000, ओके, हैव यू गॉट दिस? और जो भी ऐड वाला आइटम है उसको क्रेडिट करना है। कितने हैं ऐड वाले आइटम? हाउ मेनी आर देयर? 5 आर देयर। टेल मी फिगर्स। ओके, दैट्स ऑल। और अब बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट आता है, स्टार्टिंग हमने लिया था डेबिट और ये आता है क्रेडिट, मतलब दोनों का नेचर सेम है, मतलब स्टार्टिंग भी लॉस है, एंडिंग भी लॉस है। लेकिन अगर ये ऑपोजिट आता है ना, इसका मतलब क्या होगा? अगर स्टार्टिंग लॉस है तो एंडिंग प्रॉफिट होगा, करेक्ट। हम चेक करते हैं टोटल ऑन डेबिट साइड, इट्स कमिंग टू 7,36,000, यहां आ रहा है 226। कैन आई से टोटल ऑन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड? तो हम लेंगे बैलेंसिंग फिगर। Is it coming 5,10,000? Is it matching with the question? Yes. ये क्या होगा? By net loss as per financial accounting. समझ में आया? 4 स्टेप्स बताए, फिर से रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। स्टेप नंबर 1, टेक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द डेबिट साइड। नंबर 2, ऑल द सब्सट्रैक्ट्स टू बी डेबिटेड, ऑल द एडिशंस टू बी क्रेडिटेड, एंड यू अराइव एट द एंडिंग पॉइंट, करेक्ट। चलो लिखिए। तो पहले जो हमें पता है ना, हमेशा वो करना चाहिए, उससे आसान हो जाता है। So copy question number 18 and prepare this account for question number 19.
यस, डन। चलो क्विकली देखते हैं क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब क्या होंगे, लेस होंगे। एडमिन ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब प्रभात बताएगा ऐड होगा। डेप्रीसिएशन का डिफरेंस देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रीसिएशन 10,000 ज्यादा है तो क्या होगा, ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स क्या होगा, ऐड होगा। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड लेस, ट्रांसफर फीस क्रेडिट ऐड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ लेस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, लेस होगा। चेक कीजिए, आर यू गेटिंग आंसर्स? हाँ, आर यू गेटिंग आंसर्स? तो अब क्विकली चलते हैं इंडेक्स में, अगर बन रहा है तो। मुझे नहीं पता लास्ट चैप्टर तक कितने लोग आए हैं इस पॉइंट पे इंडेक्स में, और कितने लोग हो गए हैं यहाँ शहीद। और चलिए पोस्ट कीजिए आज के क्लास वर्क क्वेश्चंस, और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे आज के आपके होमवर्क क्वेश्चंस। पर अब मैंने आई चेंज माई माइंड और मैं होमवर्क दे रहा हूँ। यस, कम ऑन, राइट डाउन आज का होमवर्क। बस इससे ज्यादा देने की इच्छा नहीं है ना। तो अच्छे से होमवर्क करना बच्चों, ठीक उसी तरह जैसे पूरी बैच में आपने होमवर्क किया है हर दिन, इतने फोकस से, इतने अटेंशन से, इतना अपने फोकस से किया है। अभिजीत ने तो स्टार्ट भी कर दिया होमवर्क सॉल्व करना। फैंटास्टिक अभिजीत, वेल डन वेल डन वेल डन। सो प्रभात को याद नहीं रहेगा यार इतने सारे होमवर्क है। सो इतने सारे आपको होमवर्क करने हैं। और चलो जो क्लास वर्क किए हैं उसे तो इंडेक्स में पोस्ट कीजिए। हाँ, छुट्टी क्या होती है, छुट्टी कभी हमने छुट्टी ली है? ओके, चलो अब यहां हम कुछ करते हैं। ये आपके सामने है न्यू सिलेबस के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर। पीला पीला पेपर देख के हम भी एग्जाम में पीले पीले हो जाते हैं क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है। ये कलर के साथ इंस्टीट्यूट हमारे ऊपर दोहरा वार करता है, एक तो क्वेश्चंस वाला वार और दूसरा पीले कलर का वार। ओ माय गॉड, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, नहीं सर। माय डियर फ्रेंड्स, those who are in the class for the live lectures, we will be having one more session, but that we will be having combined for accounting and cost accounting at the end. Those who are watching through virtual lectures, the session will be uploaded on YouTube on how to write the paper for cost and management accounting, how to study, how to prepare, what is the study strategy and all. The virtual students in your pen drive will also have the lectures on the solutions of May 2018 and November 2018 question paper of the ICI examination that we'll be doing in the class later on. But अभी हम ये पेपर करते हैं एनालाइज। और फिर से मेरी आज जब ये बैच मैं खत्म कर रहा हूँ आपके साथ एक ही एक्सपेक्टेशन है। आई एम नॉट अज्यूमिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन टू हैव योर डिग्री ऑफ कंप्लीशन एज 100%। मेरी बात अच्छे से समझना। आप लोग अपना कॉन्फिडेंस ये सोच के लूज करते हो कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, और आपके कुछ का मतलब है 100%। मैं आप लोगों को ये बोल के कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ। ये चीज मैं कभी भी बैच के शुरुआत में नहीं कहता हूँ, बट आज जब बैच खत्म हो रहा है तो मैं ये चीज कह सकता हूँ कि इफ योर डीओसी, अब सबको पता होगा डीओसी का मतलब, इफ योर डीओसी इज अबाउ 60 to 70%, you are in a very good position. The expected bare minimum DOC from you is 50%. मतलब whatever we have understood, we have studied in the lecture, you should know 50% of the contents. Either it's 50% of the topics or it's 50% of each topic. Anything above 50% is a very good percent. And if your DOC is above 70%, you are in a very, very good position, very, very good shape. Why am I saying so, my dear friends?
Because as I've told you, after your group 1 completes, you will be now doing classes for group 2. After your, this is the trend teaching methodology in Pune, where we are taking first classes for all the 4 subjects of group 1 for 3.5 months, followed by the classes of group 2 for another 2.5 months. Then the students get preparation leave for 3 months, and then they appear for their examination. So if you analyze your overall study duration, it's divided into 3 phases. Phase 1, I'm talking about specifically group 1. Phase 1, when you are doing classes, when you are wholly, and I can use the word solely, into group 1 and those 4 subjects. Your phase 2 is going to be such phase where you will be wholly and solely into group 2, but you won't find time for group 1. And your phase 3 is that time where you have ample of time, but you have to determine, you have to decide that you need to find out time for what, किस चीज के लिए आपको टाइम निकालना है, कैसे आपको ये टाइम देखना है. आप अगर ये देखोगे, अभी आपके पास नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड. ये स्टडी प्लानिंग चार्ट में मैंने आपको 3 रिविजन्स का प्रोविजन दिया है. सबसे पहले रिवीजन का मतलब क्या होता है, जो अभी हम क्लास में कर रहे हैं, दिस इज नॉट रिवीजन, दिस इज द फर्स्ट टाइम स्टडी. रिवीजन का मतलब होता है यू नीड टू सेट अ विजन and you need to react according to that vision. That's known as revision. My dear friends, you must complete 3 revisions before exam. What are those 3 revisions? One in phase 2. Phase 2 matlab when you will be now beginning with your lectures of group 2. According to me, we have a discussion on this. We will be doing in the class in the days to come. According to me, if someone takes the decision to give only group 1, that's a very unthoughtful decision, because now you see there's so many months left now. और इतने महीने क्या करोगे सिर्फ इतने सब्जेक्ट करके? जो भी ये प्लान किया हुआ है, कितने सब्जेक्ट, कितने टॉपिक, कितने महीने, वो सब एक सोची समझी तरीके से प्लान किया गया है. तो आपके पास बहुत समय है उसे क्रैक करने के लिए. दूसरी चीज, आपको फेज 2 में, मतलब जब आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशंस करोगे, ग्रुप 1 के सब्जेक्ट के लिए समय निकालना पड़ेगा बीच बीच में. लॉट ऑफ टाइम इफ यू आर अनटच विद समवन, पर्सन, कंसेप्ट, प्लेस, you tend to lose connection with that thing. Do you agree with me? Isn't it? So you may had some friends in CPT Foundation who were very close friends, but now maybe if you are not meeting them on a regular basis, you may have got attached with the new friends and may have lost some or got some disconnect with those friends. It's only one reason, long distance. There's no other reason to it. Same thing will happen. But my concern is what? Understand. My concern is the beginning of phase 3. उस दिन क्या होगा जिस दिन आप स्टार्ट करोगे सेल्फ स्टडी करना, मतलब फेज 3 का डे 1. फेज 3 के डे 1 पे जब आप कॉस्टिंग की बुक खोलोगे तो आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन उस दिन क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज जब आप सिर्फ ग्रुप 1 कर रहे हो, आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन सपोज लेट्स टेक इट्स 60%. अभी पता चलेगा एक पेपर हम एनालाइज करेंगे तो सपोज इट्स 60%. ये मत समझिएगा कि अब जब आप 2.5 मंथ्स इंटर का ग्रुप 2 का क्लास करोगे और उसके बाद पढ़ने बैठोगे, मतलब मैं बात कर रहा हूं फेज 3 के डे 1 की, तब ये 60% ही रहेगा. ये मत समझना, इसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा. उसको टेक्निकली डेप्रिसिएशन की जगह मैं कहना चाहूंगा इवेपोरेशन. आज जो 60 है ना, वो 2.5 मंथ्स बाद वो आ जाएगा सीधा 30 पे या उससे भी कम. डू यू एग्री विथ मी? यू हैव टू मेंटेन दिस. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का बैलेंस क्या है, कितना है, ये हम देखेंगे. बट मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपकी लाइफ के जो सुपर स्ट्रगल डेज थे वो अब खत्म होने वाले हैं. कुछ महीनों के लिए आपको रिस्पाइट मिलेगा और फिर आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाले दिन स्टार्ट होंगे. और वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाले दिन होंगे वो फेज 3, जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे, जब आप घर पे बैठोगे, जब आपके पास कोई टीचर नहीं होगा डेली बेसिस पे कांटेक्ट करने के लिए, मिलने के लिए. बात सी, यू कम हियर, यू मीट अस, देयर इज नो प्रॉब्लम. यू कॉल अस, इफ यू आर एबल टू टेक अप द कॉल, विल टेक अप द कॉल. करेक्ट?
बट अभी हम डे टू डे बेसिस में मिल रहे हैं, ये लेक्चर्स के थ्रू, ये टाइम टेबल के अंडर हम डेली मिल रहे हैं। डेली वो एक इंजेक्ट आपको होता रह रहा है, आपको डेली कोई डांटने वाला है, डेली कोई बताने वाला है, डेली कोई समझाने वाला है, भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। काफी बार किसी का इतना कहा हुआ भी पता नहीं कौन सी चीज दिल को लग जाए कहां पे, और उससे क्या चेंज हो जाए, वी नेवर नो। वो जो 3 महीने होंगे ना कोई बोलने वाला होगा, ना कोई कहने वाला होगा, इट्स ऑल सेल्फ मोटिवेशन, एवरीथिंग इज सेल्फ मोटिवेशन दैट टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, वो एक ऐसा फेज होगा जहां पे आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा। खुद से मतलब खुद की आदतों से। अभी आप इतने बिजी हो तो आपको लग रहा है समय नहीं, अगर समय होता था तो मैं क्या कर लेती थी। पर एक चीज मैं बताऊं, जब समय होगा ना तब कुछ भी नहीं होगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम और एनीथिंग इज रियलाइज इन इट्स एब्सेंस। समझ में आ रहा है? सो अभी जब समय नहीं है तो यू वैल्यू टाइम लाइक एनीथिंग, और जब बहुत समय होगा 1 घंटा और सो लेते हैं ना यार, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सो लाओ, आज नहीं कर ले कल कर लेंगे, हो जाएगा, 3 महीने बचे हैं एग्जाम, 3 का 2 होगा, 2 का 1 होगा, 1 का कब समय निकलेगा कुछ पता नहीं चलेगा। मैं एक ही कहना चाहता हूं कि ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन को मेंटेन रखना, और मेंटेन रखना मतलब कैसे, एक्सटेम्पोर बेसिस पे बीच बीच में कोई क्वेश्चन उठा के रैंडमली उसे सॉल्व कर लेना। समझ में आ रहा है आपको? बैठे हो आप, देखो समय निकलेगा, निकालना पड़ेगा। ग्रुप 2 की स्टडीज के साथ उसके होमवर्क्स रहेंगे, उसकी अपनी सेल्फ स्टडी रहेगी, बट बहुत कम रहेगा एज कंपेयर टू ग्रुप 1। समय निकलेगा आपको, संडेज मिल सकते हैं, बाकी दिन मिल सकते हैं, समय निकालो। जैसे आज समय निकाला, बैठा, वो स्कूल बस कॉस्टिंग का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लिया एक्सटेम्पोर। ऐसा कुछ माइंड में फिक्स नहीं है कि आज मुझे सर्विस कॉस्टिंग पढ़ना है। सुनना मेरी बात, रैंडमली पिक अप ए क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो लोग अभी घर से दूर है उनको लग रहा होगा मुझे घर की बहुत याद आ रही है, आई एम फीलिंग होम सिक। जिस दिन आप यहां से चले जाओगे ना और पूरी तरह घर पे होगे, आप मुझे मैसेज करना, आई वेट फॉर योर मैसेज। आप बाद में कहोगे आई एम फीलिंग क्लास सिक, आई एम फीलिंग क्लास सिक। These days are the best days, the most hardworking days of your life, where you are genuinely doing hard working. जो बच्चा अभी 8 बजे भी क्लास में आया, 7 के बैच को 8 बजे आया, मैंने उसको नहीं रोका। मैं ऐसा सीपीटी फाउंडेशन में नहीं था, ये आपको भी पता है। मैंने क्यों नहीं रोका? क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज पे बिलीव करता हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो गया उसके कान में, नहीं चलो मैं ये चीज सोच के उसको बोलूं कि तू क्लास में मत आ, कि भाई तू पहले 1 घंटा लेट आया तो तू क्लास में ही मत आ। पर मैं अगर ऐसा करूंगा तो मैं उसको डिमोटिवेट करूंगा, वो आगे से जो 1 घंटा क्लास में बैठ रही है वो भी नहीं बैठेगी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जस्ट सिंपल। सो मैं आपको यहाँ एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि एक रैंडमली क्वेश्चन पिकअप कर लिया। किसी दिन वो ओवरहेड का नहीं था, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रीडायरेक्ट, एक पिकअप कर लिया, क्वेश्चन खत्म। वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसमें ही क्लियर हो जाएगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। उससे जजमेंटल नहीं होना है, जितना आ रहा है करो, जो नहीं आ रहा है हाथों हाथ रजिस्टर खोलो, देखो समझ के, फिर वापस रजिस्टर बंद करके सॉल्व कर लो, खत्म कर लो, खत्म। ग्रुप 2 के साथ आपकी होगी पहली रिवीजन, ये कॉलम, मतलब ये कॉलम है फर्स्ट रिवीजन टुगेदर विद ग्रुप 2। सेकेंड रिवीजन एक्सटेंसिव रिवीजन होनी चाहिए। फिर से समझना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कभी भी आप वाउचिंग स्टडीज नहीं कर सकते हो, रीड नहीं कर सकते हो। यू डोंट हैव टू चेक द सॉल्यूशन, यू हैव टू सॉल्व इट, जिसको मैं कहता हूं एक्सटेंसिव रिवीजन। सेकेंड रिवीजन अकॉर्डिंग टू मी शुड बी एन एक्सटेंसिव रिवीजन। व्हेन आई से एक्सटेंसिव का मतलब आपको पता है क्या है? एक्सटेंसिव का मतलब है एज गुड एज इन क्लास। Right from the day when we started the batch. See, there is obviously the difference of 20% for virtual students or for the students sitting in class. We take break, you come in the morning, the setup time, productive, non-productive, बहुत सारी चीजें होती है, correct, breaks and all. So approximately this batch is meant for 150 hours.
माय डियर फ्रेंड, सेकेंड एक्सटेंसिव रिवीजन आप जो करोगे ना, इट वोंट टेक यू मोर देन 80 आवर्स, बट वो 80 घंटे देने पड़ेंगे, ये समझ लेना। अरे सिंपल है, 4 घंटा एक दिन में दे दो, 20 दिन के अंदर कॉस्टिंग खत्म। पर ये एक्सटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या, मैं फिर से कह रहा हूं, सॉल्यूशंस को चेक नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को रीसॉल्व करना है। मे बी डोंट ड्रॉ फॉर्मेट। प्रॉब्लम स्टार्ट कब होती है, जब आपके सामने एक ब्लैंक पेपर होता है ना। जब पेपर ब्लैंक होता है ना, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वो डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। एक बार कोई डायरेक्शन दिखाए तो हम उसमें चलते, तो उसमें आप अकेले नहीं चलते हो, उसमें सभी चलते हैं, उसमें सभी चलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको यहां पे ये चीज समझना है कि सेकेंड रिवीजन आपकी होनी चाहिए एक्सटेंसिव, और वो कब होगी, इन योर प्रिपरेशन लीव। वो 3 महीने, फेज 3 की बात कर रहा हूं, फेज 3 को शुरू ही करना है फर्स्ट ग्रुप से। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 तो ताजा रहेगा ना, तब बिल्कुल फ्रेश रहेगा। 4 सब्जेक्ट एक समय पढ़ना है, इस समय पूरा दिन खाली है, 24/7 स्काई इज द लिमिट दैट टाइम, पूरा दिन खाली है आपके पास। तो ये चीज ध्यान रखना है। थर्ड रिवीजन कब करना है, ये फेज 3 के एंड पे करना है। अब आपको लग रहा है सब आप रैप अप करने वाले हो, करेक्ट, और इसके बाद डायरेक्टली एग्जाम की पढ़ाई है। तो ये है आपकी थर्ड रिवीजन। सो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको आपका मेंटेन रखना है, बढ़ाना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 18 का पेपर हमने लास्ट लेक्चर में एनालाइज किया था, आपने देखा था एक भी चैप्टर पे क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ये है मई 2018 का पेपर। लेट्स एनालाइज दिस पेपर। ओके, सो आप यहां क्वेश्चन देख रहे हैं, एनुअल डिमांड दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑन ऑर्डर दिया है, कॉस्ट पर यूनिट दिया है, कैरिंग कॉस्ट दिया है। कुछ लाइट लग रहा है इससे? क्या होगा? EOQ, suggest whether the quantity or offer should be accepted or not। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 ही अगर पेपर का क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ये हमें आता है। समझ में आ रहा है? वी नो दिस। क्वेश्चन नंबर 1B, अभी यहां से डीओसी सब खुद का मॉनिटर करो। हाँ, मुझे बताना चाहते हो अलग से बताना, क्लास में नहीं, बट अभी खुद का डीओसी मॉनिटर करो, मुझे आपके चेहरे से आंसर मिल जाएगा। 5 मार्क का क्वेश्चन है। एक लेबर का हाल से और रो 1 के अंडर आपको कैलकुलेट करना है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। सेम क्वेश्चन हमारे बुक में है, देख लेना आप, और वो बुक इस पेपर से पहले बन चुका था। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। सेल्स दिया है, प्रॉफिट लॉस दिया है। 5 मार्क 5 क्वेश्चन, 1 मार्क 1 क्वेश्चन। टेल मी फॉर्मूला पीवी रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। सर मैं वो फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, बुकिश फॉर्मूला। मैं इस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा वो फॉर्मूला पूछ रहा हूं। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स बता के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पता ही नहीं है। यहां पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगेगा कौन सा? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, क्योंकि 2 अलग अलग पीरियड्स के मुझे प्रॉफिट दिए, सेल दिए, पीवी रेशियो मिल गया, तो ये सारी चीजें पीछे से आपको मिल जाएगी। 1 नंबर क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट है, मैं पहले भी कह रहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, उसके बावजूद आप देख लो ये 1 नंबर है कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का। 1D आपको ये सब कुछ दिया है। Do you need to prepare cost sheet? No. Do you need to prepare P&L? Question number 17 केला ना आता घरीच कालचा होमवर्क सेम, ओनली एंड ओनली रिकंसिलेशन स्टेप। खुद के माइंड में एनालाइज करना, मुझे मत बताना, फिर से कह रहा हूं, बताना है अलग से बताना। क्लास के बाद सोच लो 20 में से अभी आपको कितने मिले। कैलकुलेटर पे खुद का टोटल लिखते चलो। समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेट, ना आपने सॉल्व किया ना मैंने चेक किया, बट अप्रोक्सीमेट तो कर सकते हो यार, करेक्ट। और वैल्यूएशन स्ट्रिक्ट रख के करना कि क्वेश्चन 1 20 का था, कितने मिल गए, खुद का टोटल निकालना, 100 में से कितने बने। हो गया डीओसी, वही डीओसी है, करेक्ट।
चले आगे। क्वेश्चन 2, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर। रॉ मटेरियल, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सारा डेटा हमें यहां दिया है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ द फर्म। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन 2B, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। आपको दिया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेडियम 160 लाख इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये सारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपको दिया है। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी इज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। कैन आई से इस फिगर से हमें वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा? ठीक है, एक बार सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर पे आपने जो मार्क्स लिखे होंगे कहीं साइड में लिख के रखिए। 9440 डिवाइडेड बाय 80%, कहना है 11,800 इज वर्क सर्टिफाइड। लेकिन रुकना, यहाँ एक छोटा सा पप्पू, और पप्पू है क्या, ये दिए हैं फिगर्स इन थाउजेंड्स और ऊपर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है रुपीज इन लैक्स। तो पहले क्या कीजिए, आपके स्क्रीन पे 11,800, उसको मल्टीप्लाई करो 1000 से और डिवाइड करो 1 लाख से। हैव यू गॉट 118? अब ये 118 को डिवाइड करो 160 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, हैव यू गॉट 73.75। ये क्या है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ये मैंने इतनी सब रामायण क्यों की है? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा। 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर ये दिमाग में आ रहा है समझ लो हो गया। बाकी इस क्वेश्चन में है क्या और कुछ है? कुछ भी नहीं। ऐसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। देखा आपने, खुद को मार्क्स देते चलो, आगे बढ़ते चलो, कस के मार्क्स देना। फिर से कह रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन 3A, ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया है, क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया है। ओ माय गॉड, 10 मार्क का क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल मल्टीप्लाइड बाय 100। Separation method, number of employees separated divided by average number of employees multiplied by 100. Flux method देखा था सब, क्या था फ्लक्स का फॉर्मूला? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज accessed प्लस रिप्लेसमेंट प्लस एक्सेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। खुद का डीओसी कैसे चेक करना है? क्या मैं सर के साथ ये फॉर्मूला रिकॉल कर पाई या कर पाया? अगर मैं एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रही हूं, आज अभी लगेज इमीडिएटली, कितने मार्क्स मुझे मिलेंगे? ईमानदारी से खुद को उतने मार्क्स देना। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को बताना नहीं है। पास वाला देख रहा है, एक रख के दे दो उसको, पर बताओ मत उसको। खुद का चेहरा आईने में देखना समझना बहुत जरूरी है। हकीकत आपको पेरेंट्स और टीचर के अलावा कोई दूसरा नहीं बताएगा। 10 मार्क का क्वेश्चन है। आप देखो, अगर यार 2 भी निकाल के आते हो यार, 2/3 मार्क्स मिल जाएंगे ना। क्या चाहिए? चलो, प्रोसेस कॉस्टिंग का यहां क्वेश्चन दिख रहा है। 3 प्रोसेसेस दिख रही है, P, Q एंड R। ओके, हमने देखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। यहां पे क्या दिया है? देयर वाज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और WIP। ये प्रोसेस कॉस्टिंग के सबसे टुल्लू क्वेश्चंस होते हैं। द एंटायर आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पास डायरेक्टली टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ये भी टुल्लू होता है क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने देखा था गुड्स कैन बी ट्रांसफर आइदर एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस सबसे ॲडव्हान्स था. इकडे काहीच नाही तसं, फक्त कॉस्ट प्राइस आहे. कंपनी फिक्स सेलिंग प्राइस दिस you have to prepare process PQR account, also calculate selling price per unit of the end product. 10 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, 10 मार्क का. प्रोसेस कॉस्टिंग के जो सुपर 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 इजी क्वेश्चन किए ना, उसमें से ये क्वेश्चन है. खुद अपने आप को मार्क्स दो, खुद को सोचो, और सब ईमानदारी वाला चाहिए. हो सकता है ये 10 मिनट का सेशन आपको कॉन्फिडेंस से पूरा माला माल कर दे, या ये 10 मिनट का सेशन आपको घबरा दे. जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, इतना कहना चाह रहा हूं. अगर बहुत आप खुश हो गए हो, सोनिया गुड मॉर्निंग, बहुत आप खुश हो गए हो, तो चढ़ने की जरूरत नहीं है. ये डीओसी को मेंटेन करना आसान. अरे जिसको कुछ नहीं आता, he has nothing to lose. हारने का डर उसको है जिसको जीतना है, जिसको खेलना है. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ये देखिए, एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, जेल पेन एंड बॉल पेन. जान के खुशी हुई. एनुअल आउटपुट, मशीनास, परचेस, ये वो सब दिया है आपको. कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अंडर
traditional method of charging overheads, activity based costing, and find out the difference in cost per unit between both of the methods. My dear friends, आपको ओवरहेड कॉस्ट फाइंड आउट करना है. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आप उसको मैनेज कर सकते हो. चैप्टर नंबर 4 एंड 5 आप कितना मैनेज कर सकते हो, खुद को मार्क्स देना है. फिर से समझा रहा हूं, मार्क्स आप अभी खुद को स्ट्रिक्ट रह के ही देना. करेक्ट. A group of healthcare services decided to establish a CCU. कुछ याद आ रहा है क्या? CCU का क्वेश्चन हमने किया था हॉस्पिटल का. ये देखिए वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. कौन सा चैप्टर था? सर्विस कॉस्टिंग. कितने मार्क का है? 10 मार्क का क्वेश्चन है. चेक कर लीजिए आप. प्रॉफिट पर पेशेंट डे हॉस्पिटल charges on an average 2,500 per patient from each per day from each patient and break even points. Question 5A1 5 mark का question है. You have to calculate turnover ratios of both the material. टर्नओवर रेशियोज हमने कैलकुलेट किया था. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो याद आ रहा है क्या फॉर्मूला था? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय 100. और उसी से रिलेटिंग एक और चीज देखी थी हमने जिसपे दूसरा क्वेश्चन IHP मतलब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, कि आप एक इन्वेंट्री को कितने दिनों तक. देखो वही क्वेश्चन पूछा है आपसे, वेदर एन इन्वेंट्री स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग और नॉन मूविंग. 5 मार्क का क्वेश्चन है. उसके बाद और 5 मार्क का क्वेश्चन दिया है. आपकी जिंदगी के सबसे 3 आसान वैरायंसेस, मटेरियल कॉस्ट वैरायंस, मटेरियल यूजेज वैरायंस, मटेरियल प्राइस वैरायंस. और सोनिया को आ रही है बहुत ही ज्यादा नींद. सोनिया कल कहाँ गए थे आप जो आपको आ रही है इतनी ज्यादा नींद? ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद तो नींदें उड़ जाती है, आपकी नहीं उड़ रही है. वेरी बैड. उड़ाओ नींद. 10 मार्क का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको क्या पूछा है? मार्जिनल कॉस्टिंग पे ये क्वेश्चन है. इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 200 देन सेल्स विल कम डाउन बाय 60% ऑफ द टोटल एनुअल कैपेसिटी. शुड द कंपनी इंक्रीज द सेलिंग प्राइस? पर्टिकुलर्स प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. The company can earn the profit of 20% of sales if the company provide type in with ready-made suit. The cost of the type in is ₹18. Calculate the sales to earn the profit of 20% on sales. लास्ट क्वेश्चन जो सर हमेशा चीख के सर का गला बैठ जाता क्या के लास्ट क्वेश्चन होता है थ्योरी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 छोटू सा निक्कू सा क्वेश्चन है. देखो ये क्या कह रहा है 6A. इसमें से आपको सॉल्व करना है कोई भी 4. मार्क्स 5 के मत देना खुद को, 4 के देना. पर पहले पढ़ते हैं फिर सोचो कौन से 4 सॉल्व करोगे और कौन से में से कितने मार्क्स मिलेंगे. Why are cost and management accounting information required by staff at operational level described? किसी चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस की बात है. ऑपरेशनल लेवल कौन सा होता है वो याद आ रहा है? ट्रायंगल मैंने आपको सिखाया था. सबसे ऊपर वाला कौन सा लेवल? एग्जीक्यूटिव लेवल ऑल्सो नोन एज टॉप लेवल. उसके नीचे मिडिल लेवल ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल. और सबसे नीचे वाला लोअर लेवल ऑल्सो नोन एज ऑपरेट. उसकी बात हो रही है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट उन लोगों के लिए क्या है. अरे लिख सकते हो, बहुत लिख सकते हो. दे आर दोज पीपल हु कम्स इनटू कांटेक्ट विद द कस्टमर. दे नो. टॉप लेवल मैनेजरियल लेवल कभी कस्टमर से मिलता है? नहीं. डे टू डे कस्टमर का फीडबैक हमको पता है. मैं पढ़ाता हूं, मुझे लगता है मैं सबसे बेस्ट पढ़ाता हूं. ऐसा लगता नहीं पर मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे बेस्ट पढ़ाता हूं. बट हो सकता है यहाँ क्लास में स्टूडेंट जो बाहर स्टूडेंट है जो मेरे स्टूडेंट नहीं है उनका फीडबैक कुछ और हो. सो ये डिपेंड. एक्सप्लेन JIT इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप्रोच जस्ट इन टाइम. बहुत डिटेल डिस्कशन किया था. टाटा नैनो का एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया था. Why is zero based budgeting considered superior than traditional budgeting? ये एक क्वेश्चन थोड़ा उन्होंने कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछा. बट यस इट्स अगेन कवर्ड. एक्सप्लेन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग एंड एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड FIFO एंड LIFO मेथड ऑफ स्टोर. खुद को मार्क्स दो, टोटल लो. जो टोटल आई ना उसमें 5% कम कर दो, -5%. ये आपका DOC है. समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये आपका आज का DOC है. मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा इस पे से, डरो मत कि किसका DOC ज्यादा है कम है. कुछ नहीं. बताना चाहो अलग से बताना, आपकी इच्छा नहीं बताना चाहो बेस्ट, नो प्रॉब्लम. खुद समझ लो.
आपका डीओसी कहाँ है, वेयर यू स्टैंड। मैं चाहता हूं कि आप फेज 3 का जब डे 1 पे आओ, प्रिपरेशन लीव के लिए बैठो, आपका उस दिन कम से कम डीओसी होना चाहिए 50% आफ्टर ऑल द डेप्रिसिएशन। मैं चाहता हूं उस दिन आप 51 से चालू करो, ना कि 1 से चालू करो, क्योंकि 1 से चालू करना पड़ा तो शायद तकलीफ है। 51 से चालू किया और अगर सही मेहनत की, पूरी ईमानदारी से, दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। नो एनर्जी, नो सुपर पावर इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू टू पास। समझ में आया सभी को? सो माय डियर फ्रेंड्स, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं, जो जैसा होता है वो वैसा दिखता नहीं। क्या होता है, क्या दिखता है, ये सब आपको पता चलेगा जब आप खुद करेंगे, जब आप खुद देखेंगे। और इसको है अभी बहुत समय। थैंक्स फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल स्टूडेंट्स एंड हाँ जी, सुविचार रह गया हमारा। क्या है सुविचार चैप्टर में? विद द परमिशन ऑफ प्रभात सर, सुविचार है यहाँ पे। लाइफ सेज दैट इवन इन योर टफेस्ट टाइम्स कीप स्माइलिंग, बिकॉज आपकी तरफ आने वाले जो भी सॉरोज हैं वो आपको ज्यादा देर आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर आपको हंसते देखेंगे तो वो आपकी हंसी से अपने आप डर। हाँ, ये सबसे डिफिकल्ट होता है, अपने टफेस्ट समय में हंसना सबसे डिफिकल्ट होता है। बट मैंने किसी तो चैप्टर में लिखा है ना कि victory comes easily to you. You turn back and say, you have chosen a wrong person. I am meant to accept the challenges. और हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। Those examples, those people who started from nothing and then today they are everything. You never choose, you never decide that which family you want to take birth. If you are born poor, that's not your fault. But if you die poor, that's certainly your fault. Correct? So on this note, we conclude this batch over here. Please study hard, prepare well. See you later. Thank you very much.